Students, now please pay attention for this. Now, when you're speaking about with respect to electric flux, students, what exactly electric flux we consider, students? The definition for electric flux goes in this manner, students. It's a number of electric field lines. Listen carefully, students. Electric flux is defined as number of electric field lines passing normally through a given surface. Passing normally through a given surface, and its formula is electric flux is equal to a dot product of E and A. Students, electric flux is a scalar quantity. And it's a dot product of E and A. That is electric field intensity we consider an area vector. Let us understand the electric flux hai kya, students. Please pay attention over here now. Suppose if in case if I happen to take a conducting material, students. For example, let us say I've taken a box which is considered to be a conductor. Students, I've taken this particular box and I've considered this box to be as a conductor in this case, but it's hollow from inside. Okay, it's a conducting material we consider. The box is conducting material and it's hollow from inside. Inside, what exactly I've kept, students? Inside, I've taken an electrically charged wire. यानी मैंने एक वायर लिया, students. Please pay attention to this. Okay, ये जो वायर मैंने है, I've taken this particular wire, students, and the charge is uniformly distributed along the length of this particular wire. ये है uniform distribution of charge, students. Please listen carefully. Of course, charges reside on either side, लेकिन मैंने एक तरफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, students. मैं सिर्फ एक तरफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ. Okay, on one side of the line we consider. So what exactly I've taken a wire which is electrically charged or simple kind of a glass rod. Students, try to go for a very thin glass rod, rub it with a silk cloth. So the charge you induce onto it will be positive, we consider, and this is placed inside a conducting material. मुझे बताओ, students, ये जो charge है, that is distributed what? It's distributed along the length. So of course, should we go for linear charge density, surface charge density, या volume charge density, students? कोई बता सकते हैं, students? क्या मैं linear? Yes. Should I go for linear charge density, surface charge density, or volume charge density, students? So linear charge. Deep last lecture को कहाँ था? सर मेरा वो इंटरनेट इशू हो गया था. But you were half an hour. You were not there in the lectures, my dear. सर मैंने ट्राई किया लेकिन कनेक्ट ही नहीं हुआ. I don't know about it whether the questions were easy for the rest of them or not. Okay, fine. What Deep has given the answer is a correct one, students. Lambda is equal to charge per unit length. Students, Q by L होगा. अगर सपोज मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट अगर लिया ना, DL, तो उसके लिए जो चार्ज होगा वो क्या होगा जाएगा? DQ. ये ध्यान में रखना. इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसका यूनिट होगा कूलम्ब मीटर इनवर्स. लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो मैंने फॉर्मूला दे दिया. वी आर ट्राइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट, स्टूडेंट्स. अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हाउ द फील्ड लाइंस आर ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. These are all the field lines which are coming out. And how are the field lines? All of them are parallel to each other. So it's a uniform and a strong field, students. Agreed? यानी ये क्या है? सर ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, स्टूडेंट्स. नाउ ये जो फील्ड लाइंस है, इट्स पासिंग थ्रू द बॉक्स. बट नाउ सपोज अगर मैंने स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, मैंने अगर इस बॉक्स का ये सरफेस एरिया अगर मैंने देखा, स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, अगर मैं ये सरफेस एरिया के बारे में बात करूं, ओनली दिस पार्ट ऑफ द एरिया, स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया, तो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस है बॉक्स का, उसका एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा? तो व्हाट विल बी आंसर? सर एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. ये है तुम्हारा एरिया वेक्टर. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ सबसे पहले? यस सर. अभी आंसर देखना स्टूडेंट्स, ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मैंने क्या किया, एक फील्ड लाइन लिया मैंने जो आगे की तरफ ले लिया. आई एम पुटिंग इन दिस मैनर.
Okay, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कंसीडर, ये है. So this is what your electric field line I'll consider. Agreed. And A, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, is E and A are in same direction? Is electric field vector and the area is in same direction? No. No sir. फ्लक्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स? व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैंने क्या क्या बोला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम अ गिवन सरफेस. सरफेस ये है, ये सरफेस है स्टूडेंट्स. इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी बाहर आ रही है, लेकिन काउंट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 6 are passing through it, 2 are not passing. So is the flux coming out is maximum? No. यानी there is some flux but the flux is less. मुझे क्या चाहिए? मुझे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए. फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए. कैसे मिलेगा मैक्सिमम? तो तुम बोलोगे सर या तो आप ई को ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर ऑन टू ए. यानी उसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? यानी ये जो रॉड है, ग्लास रॉड है, या जो वायर है इलेक्ट्रिकली चार्ज है, rather than keeping it slant you keep it perpendicular. Students, rather than keeping it slant keep it perpendicular. सपोज अगर अज्यूम कि यही ग्लास रॉड को मैंने अंदर परपेंडिकुलर रखा होता, और देखो पोजीशन मैंने चेंज कर दिया. अगर मैंने अंदर परपेंडिकुलर रखा होता, स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक सो? हाउ इज दिस ई? अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस है, सी हो भैया, इज दिस ई एंड ए विल बी पैरेलल टू ईच अदर स्टूडेंट्स? Yes ना? sir. ये सारी लाइंस बाहर आती स्टूडेंट्स. ये देखो जितनी भी लाइंस हैं ये सारी विल कम आउट थ्रू द फेस. यानी मैक्सिमम फ्लक्स कैन कम आउट फ्रॉम हियर, लेकिन यहाँ पे तो कम फ्लक्स आ रहा है. तो तुम्हें क्या करना है? या तो तुम वायर को सीधा कर दो, या तो तुम क्या करो, कंटेनर को टिल्ट कर दो. उसका मतलब either you drop a perpendicular E onto A, है ना? Either you drop a perpendicular E onto A or drop A perpendicular onto E. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? Yes sir. Yes. That means you have an electric field vector is acting in this direction, students. This is the area vector we consider acting in this direction. The angle between both of them I'll consider will be theta. Okay. So either you drop E onto A. So what's a component I'll consider? E cos theta. So can I say E cos theta into A? That's the formula for electric flux. Absolutely correct. वैसे ही अगर मैंने A को ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, agreed? तो in that case ये क्या होगा? A cos theta, and that is in the direction of it. So can I say my flux can also be given in terms of what? E A cos theta. या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट दोनों केस में? The formula remains the same. This is what we call as electric flux. So electric flux का मतलब क्या students? Electric flux का मतलब number of electric field lines passing normally through a given surface. This is what electric flux. That's why it's a dot product of E and A. इसलिए component cos theta आता है. ना अगर किसी ने पूछा थीटा है क्या, तो थीटा क्या है? थीटा is the angle between the electric field vector and the area vector. अगर A और E और A एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, पैरेलल होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा. So electric flux is a dot product of E and A. Now if somebody asks you what is a unit, then you'll know it. What is a unit we can consider? So electric field intensity. Voltmeter. Yes. So see, अगर तुम electric field intensity के यूनिट लिखोगे तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? सर इट्स F by Q, न्यूटन कूलम. इसको मैं एरिया ले लेता हूं तो मीटर स्क्वायर, यानी एक यूनिट ही हो सकता है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. I can put in this manner. Is that clear? Students, is it clear? Yes, sir. That's how we consider Newton meter square coulomb inverse we can consider. Okay. So that is how we can consider the the concept of electric flux we consider. यहाँ पे अगर suppose मैंने students E को subject बना दिया तो क्या होगा मेरा formula? तो अगर मैंने E को subject बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? सर flux per unit area हो जाएगा. Students ये क्या हो जाएगा? Flux per unit area. ये क्या है students? ये है electric flux density. Students, electric flux density. Students, electric flux density क्या है? इसका definition क्या है? Number of electric field lines originating perpendicularly per unit area. Students,
पर यूनिट एरिया हुआ तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या ये दो वर्ड्स क्लियर हुए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या? इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? यू कैन राइट अ न्यूटन कूलम इनवर्स, सिंपल। एक और एक यूनिट है वोल्ट मीटर इनवर्स। वैसे अगर मैं यहाँ पे लेता तो कहना से वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, कहना से वोल्ट मीटर भी आता मेरा आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ योर? Yes. Okay, so ये तुम्हारा concept of electric flux and we are going to understand this concept very very clearly, students. अगर suppose मैंने पूछा what is the total electric flux we consider is through a given enclosed or a closed surface we consider depending on the charges. So depending on the charges, अगर मैं कोई भी closed surface लूँ, students अगर मैं कोई भी irregularly a closed surface लूँ in that case, और यहाँ पे मैंने लिया है +2 microcoulomb, -10 microcoulomb, +1 microcoulomb, -12 microcoulomb. What is my final answer? तो बोले सर फाइनल आंसर तो आपका नेगेटिव में होगा, -10, -12, -20, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आई गेट इट, -20 भी कंसीडर, दैट मींस -19. So how exactly the total electric flux to this particular inwards? Agreed? भले चार्ज अंदर है स्टूडेंट्स, भले चार्ज अंदर है, but we assume that the charge is always distributed on the surface we consider for the charge conductor, और ये नेगेटिव चार्ज होगा. Agreed students? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear? Yes, sir. Yes. Now listen carefully, students. Now we go for one important concept which I want to pick it up for Gauss's theorem के लिए. I want to go for a concept of solid angle. Students, मुझे बताओ plane angle क्या है? Tarik, electric flux density is simply eco subject बनाना है. यानी अगर किसी ने पूछा what is flux per unit area? If somebody asks you what is electric flux per unit area, then what is your answer? It's electric flux density. That means it's a number of field lines passing through a given surface. लेकिन वो क्या होगा? Not total surface, per unit area. Suppose अगर मैंने इसका लेंथ और ब्रेथ दिया, ध्यान से सुना, अगर सपोज मैंने ये 10 मीटर दिया, ये 5 मीटर दिया, एवरीबॉडी लिसन केयरफुल, 10 मीटर और 5 मीटर, तो इसका एरिया कितना हुआ स्टूडेंट्स? 50 मीटर स्क्वायर, है ना? 50 मीटर स्क्वायर इफ आई कंसीडर, तो 50 मीटर स्क्वायर के लिए इफ आई हैव टू कंसीडर 1 2 3 4 5 6 field lines are passing through it. So in 50 meters square, there are 6 field lines passing through it. So for 1 meter square, how much? That is what we call flux density, students. Number of electric field lines passing normally per unit area. Agreed? Tarek, is it clear? Okay. Abhi ध्यान से सुनना, students. Now let us understand with respect to this concept. Students, what exactly mean by the term plane angle? तो बता सकते हैं plane angle का मतलब क्या students? What is plane angle? Now students. Students, what is plane angle? Plane angle is simply measured at theta. Theta is plane angle. What exactly? तुमने तो मैथ्स में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है. प्लेन एंगल है क्या? थीटा. दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ आर्क अपॉन यूनिट रेडियस. नाउ स्टूडेंट्स, अगर प्लेन एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन यूनिट रेडियस, देन स्टूडेंट्स व्हाट एक्जैक्टली इज सॉलिड एंगल? स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय वेरिएबल. Radian. यस, इट्स यूनिट इज, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, इसका यूनिट स्टेरेडियन. Radian. फ्रेंड्स, इसका यूनिट है स्टेरेडियन. In short, I'll write on STR. Students, ये जो solid angle है, ये है क्या? ओमेगा. Students, ध्यान से सुनना. Solid angle is defined as, ध्यान से सुनना students. Plane angle का definition क्या है? Length of arc upon radius. Solid angle is simply defined as area upon r square.
area upon r square. It's a dimensionless quantity, students. It's a dimensionless quantity. We are trying to understand about the concept of solid angle. Solid angle is hai kya? It's actually the angle traced at the center of a three-dimensional circular object. Please अभी ध्यान से सुनना. How to go about this? Solid angle के लिए can I erase this entire board now? Erase कर दो मैं students. Yes, sir. Okay. Sir, wait. ये तो मेरे को बोला नहीं. Sir, my mental problem. बोलना चाहिए ना माय डियर. इतना कुछ तो मैंने मिटा दिया अभी. तेरे बाकी सारे फ्रेंड्स बहुत स्मार्ट है. तुरंत जानबूझ के बोल देते इरेज कर दो सर. तुरंत बोल देते इरेज कर दो. है ना? तेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स है ना हर्ष? Students, you all are from which center? Foundation batch 2, it's mainly from which centers you all are? Harsh, students? Harsh, which center you are from? Sir, Khargar. Sir, Oh. Kandiwali. Sir, Mira Road. Kandivali. Nice, from Mira. And Deep and others? One more guy. Deep, you are from Sir, which center? Morivali. Pardon? Morivali. अच्छा, Borivali. Norman, what about you, Norman? Sir, Nerul. Jess from Mira. अभी इरेज करूं मैं हर्ष? Sir, 1 minute. Okay. Sir, done. Okay, students. Now, when you speak about the concept of solid angle, okay. Suppose if I happen to give you a spherical shaped object, students, okay, perfect spherical object. And it's a solid, it's kind of a solid sphere, students, okay. For example, you try to take it a kind of a watermelon. Kalingar ka shape, dekho, exactly perfect spherical. Yes, center is, students, center is O. Now, what do? You know, you try to cut an area part of this. A surface area part of it, you try to cut it. Okay. Now, these are the four corners of this area part of it. And that you try to cut it and take it deep inside to the center. ये जो पूरा एरिया पार्ट है इसको कट करके you take it deep inside till the center. है ना स्टूडेंट्स? तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये तुम्हारा शेप था लाइक दिस और ये तुम्हारा सेंटर O है.
Agreed. Now, when you see the angle which this particular area traces at the center, students, the angle which this particular area traces at the center is called solid angle. Is called solid angle. ये जो लाइंस है ना, जो एरिया पार्ट को जो टच कर रहा है स्टूडेंट्स, ये सपोज अगर मैंने इसको एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर एलिमेंट टू बी वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने इसका एरिया वेक्टर इफ आई शो इट इन दिस मैनर एंड इफ आई से दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट स्टूडेंट्स, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट स्टूडेंट्स, यानी इसको अगर मैं ds ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल विच इज फॉर्म्ड एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी अगर सपोज मैं इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करूंगा तो ये मेरा r आ गया, ये मेरा सेंटर है, तो जो एंगल फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स एट द सेंटर, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल. Since the area is very small, the angle over here is also very small. Is that clear? Yes. Now when you speak into it students, suppose if in case if I happen to consider if the area vector students, अगर तुम्हारा area, or suppose if I happen to consider in terms of your radius students, okay, ध्यान से देखना students, ये जो तुम्हारा area vector है students, ये area vector, please pay attention, okay, this area vector, suppose if I happen to consider the position vector as this, center से position vector ये है, ये तुम्हारा area vector है, ध्यान से सुनना students, ये area vector है, ये छोटा सा एरिया वेक्टर है, नॉर्मल टू द सरफेस स्टूडेंट्स. अगर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर और एरिया वेक्टर इफ इन केस इफ आई कंसीडर दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो तुम क्या करोगे, इसका कंपोनेंट ले लोगे, तो क्या लिखोगे तुम, ds cos थीटा स्टूडेंट्स. इसका जो कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ r विल बी व्हाट, ds cos थीटा. यानी अगर मैंने d ओमेगा लिखा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, d ओमेगा लिखा है, तो दैट इज अ वेरी स्मॉल सॉलिड एंगल. दिस इज अ वेरी स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. Subtended at a center we consider. For what? For a solid sphere. For a sphere we consider. Now this d omega can be written in terms of what? Is ds cos theta upon r square. Because what's the formula of solid angle? It's area upon radius square, students. That's the formula. Does it have any dimensions? No, it has no dimensions. Its unit is in steradian, students. It is having any dimensions? No, it's m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0. It's dimensionless. तो अगर मैं d ओमेगा को लिखता हूँ ds cos थीटा अपन r स्क्वायर, एंड ना सपोज, ध्यान से सुनना, सपोज अगर मैं थीटा को सबटेंड करता हूँ, ध्यान से सुनना, एंड इफ आई ट्राई टू कंसीडर थीटा all the way around, and if I happen to go for integration, is that clear? Such that the theta tends to be 0 throughout we consider. Is that clear? So integration of d omega for the entire surface, integration of ds cos theta for the entire surface. So what exactly? Integration of d omega, I can write one simply as omega. For the entire surface means can I say theta will be tending to 0. Cos of 0 क्या बन जाएगा मेरा? 1. 1 upon r square क्या होगा students? Constant. What is integration of ds around the closed surface students? 4 pi r square. Can I say? ये हो जाएगा surface area of sphere. Students, surface area of sphere. अगर मैं ds को इंटीग्रेट करूंगा तो न्यूमरेटर क्या होगा सर? 4 pi r square. R square will get cancelled. What's the value of omega? 4 pi steradian. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जब भी तुम ओमेगा के बारे में बात करोगे ना, ध्यान से सुनना, जब भी ओमेगा लोगे फॉर द एंटायर क्लोज सरफेस, कौन सा? स्फेरिकल के लिए. जब भी तुम ओमेगा की बात करोगे स्टूडेंट, सॉलिड एंगल, अगर तुम स्फीयर के बारे में बात करोगे तो इट विल बी ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन. हमेशा ये ब्लाइंडली यूज करना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, लेकिन किसके लिए? स्फीयर के लिए तुम्हें लेना है. एंड दिस इज ऑलवेज फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स यू कंसीडर. So students, to get the concept of Gauss's theorem, first of all, a student should know what is solid angle. Solid angle का definition area upon r square we consider. अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है तो these are all the radius vector which is trying to join at the center. The angle which is formed, क्योंकि कोन बनेगा स्टूडेंट्स, एक कोन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल तुम वाटरमेलन ले लो, कलिंगर ले लो, उसके ऊपर से छोटा सा स्क्वायर निकालो और उसको नाइफ से डीप अंदर तक ले लो, तो तुम्हें एक रेक्टेंगुलर एक ट्राइंगुलर नोक जैसा ट्राइंगुलर पीस मिलेगा.
तो जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल वी कंसीडर. If I try to go for the entire surface, what exactly I'll consider will be 4 pi steradian, students. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now we go for your Gauss's theorem, students. Can I erase this? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Sir, 1 minute. Sir, done. Students, cos of 0 is plus 1. Cos of 180 is minus 1. Cos of 2 pi is again plus 1. If I try to go for the entire closed surface, I'll get it 1 in that case. तभी जाके तुम्हारा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ ds रहता है. r square बार आ जाता है, 1 upon r square बार आ जाता है. अगर तुम ds को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या होगा? 4 pi r square. कवर सरफेस एरिया r square कैंसिल हो जाएगा, 4 pi बचेगा. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. Now we go for Gauss's theorem, students. Some students say it Gauss's theorem, Gauss's law, Gauss's principle we consider. Now students, ये Gauss's law किसके लिए? students ध्यान से सुनो. Suppose मैंने तुम्हें एक closed conductor लिया है students. I'm giving you an enclosed conductor और यहाँ पे multiple charges दिए. Students अगर मैंने दिया plus Q1, plus Q2, minus Q3, Q4, minus Q5, Q6, Q7. These are so many charges inside it, students. Okay. And there are a number of charges inside it. So net charge तो हमें पता चल जाएगा summation because charges can be additive. Friends, addition of charge हो सकता है. Quantization of electric charge के अंदर you can add and subtract charges we can consider, students, and the net charge onto it can be easily bounded by an integral multiple of magnitude of charge on electron or proton. And since there will be law of conservation of electric charge, you can add and subtract charges. अभी देखो पूरा मैंने एक चार्ज करने के लिए, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे पूरा सारे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव को निकाल दिया स्टूडेंट्स. मैंने रूल आउट कर दिया तो पूरा कंडक्टर क्या हुआ स्टूडेंट्स? इट्स बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो प्लीज वेरी इंटरेस्टिंग. कंसीडर अ क्लोज्ड surface. Consider a closed surface of any shape, students, and it has a positive electric charge into it. हमें Gauss's theorem प्रूव करना है. तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? इतने सारे चार्जेस है, उसमें से सिर्फ मैं एक चार्ज को लेता हूँ और हम Gauss theorem पहले उसके लिए प्रूव करेंगे. अगर वो एक के लिए एप्लीकेबल होगा तो सारों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन सारे चार्जेस शुड बी एनक्लोज्ड इन अ गिवन सरफेस. एक क्लोज सरफेस के अंदर होना जरूरी है. So let us go for any one charge. So suppose if I happen to consider for the same, let me take a charge at point O and let us say the charge is positive. Okay, a unit positive charge at point O. तो मैंने क्या किया? मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया यहाँ पे, वापस सेम एग्जैक्टली सेम पार्ट ऑफ इट, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया. The distance of this particular, यानी अगर ये चार्ज अंदर है, ध्यान से सुना, अगर ये चार्ज अंदर है तो मैंने क्या किया? मैं अज्यूम किया कि ये चार्ज इज ऑन द सरफेस. स्टूडेंट्स, दिस इज अ चार्ज कंडक्टर, ऑल द चार्जेस आर इनसाइड. मैंने एक चार्ज लिया है. I've considered Q1 as one of the charge I'll consider, and that charge is at point O. Only one single positive charge. लेकिन मैंने भी क्या किया है?
इस चार्ज को मैं अज्यूम करता हूँ है तो अंदर, लेकिन व्हाट डू आई कंसीडर, ऑलवेज वी से दैट द चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, मैं क्यों बोलता हूँ कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस? तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सर अगर आप कोई भी कंडक्टर लेते हो, ध्यान से सुनना, कोई भी कंडक्टर लेते हो, अगर चार्ज अंदर है फिर भी आप उसको हम सरफेस के ऊपर लेते हैं, क्योंकि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर शुड बी ऑलवेज जीरो। कुछ समझ में आ रहा है? द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पूरा एक कंडक्टर है स्टूडेंट्स, the resultant electric field intensity inside a charge conductor should be always zero. तभी जाके भले चार्ज अंदर हमें, लेकिन we always go for the charge on the surface. Electric field lines never pass inside the conductor. समझ में आ रहा है? It will be always from the surface. इसके हम लोग ने MCQs भी किए हैं। अगर सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है अंदर, equal in magnitude, opposite in nature, थोड़ा सा resultant electric field intensity zero, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल आउट करके जीरो हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सबको अगर मैं ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, मैं सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा नेट चार्ज तो पॉजिटिव होगा। तो हम अज्यूम क्या करेंगे, वो पूरा चार्ज, वो पूरा जो नेट चार्ज पॉजिटिव, वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। फेयर इनफ, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड। स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? The charges will reside on the surface. दूसरी बात, ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है, ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है, यानी होगा क्या? चार्जेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे चार्जेस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सर जहाँ पे कर्व्ड एरिया ज्यादा है, जहाँ पे टेपरिंग ज्यादा है, वहां पे चार्जेस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। जहाँ पे एरिया कम होगा वहां पे डिपोजिशन ज्यादा होगा। क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Let us say that this particular charge is at a distance r, students. Okay, now if I happen to go for this, students, let us say that the area vector, इसी का area vector students, ये जो area vector है, let us say the area vector of this particular one is going in this direction. ये area vector, agreed? इस surface area का I'll consider. इसका area vector इस तरफ जा रहा है, normal to the surface. ये जो positive charge है, उसका जो electric field intensity अंदर तो होता नहीं, electric field intensity is always we consider in this direction, we consider for unit positive charge, students. Agreed? The distance of this particular point P, which is on the surface, students. Okay, due to this positive charge we consider this R, we take it from the center, we take it. Is that clear? Let us say the angle over here so formed for the small element I'll consider will be what? D theta I'll consider. Agreed? Yes. Now if I happen to ask you students, मुझे बताओ students, can you give me the formula for electric? ध्यान से सुना students, first सबसे पहला formula, can you give me the formula for electric field intensity at a point P? ध्यान से सुनना, at a point P, distance R from a unit positive charge. Notice that electric field intensity at a distance R from a given point charge or given charge we consider is what? 1 upon C into Q upon R square. yes, 1 upon 4 pi epsilon naught K for a medium, Q upon R square. क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है कि नहीं है? और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम, मैं कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चार्ज, यूनिट चार्ज को देख रहा हूँ और पॉइंट पी देख रहा हूँ। सोचो ना कि आजू बाजू में ये है ही नहीं, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। सोचो कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, यानी मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज दिया है स्टूडेंट्स और मैंने पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, तो ये हो गया फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे? एट पॉइंट पी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q upon R square। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes. Yes, sir. प्लीज स्टूडेंट्स रिप्लाई, इज दैट क्लियर? अगर तुम्हारा गॉसेस थ्योरम सही हो जाएगा ना तो इसके एप्लीकेशन सही जाएंगे। मेरे विदाउट माय हेल्प तुम डिराइव करोगे, विदाउट माय हेल्प विल डिराइव द फॉर्मूला स्टूडेंट्स।
तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ स्टूडेंट्स. Now look at the direction of electric field intensity. So the direction of electric field intensity from the point was outwards for a unit positive charge means the area vector and the electric field intensity are in the same direction. No, they're forming an angle d theta we consider. Is that clear? So now can you tell me what exactly the electric flux we consider? The electric flux passing through this particular area, is it very large or very small? So it will be very small. Electric flux. Electric flux का formula क्या होगा? Sir, it's E bar dot ds हो जाएगा, है ना? डॉट प्रोडक्ट होगा. लेकिन हम क्या करेंगे? कंपोनेंट लेंगे. तो व्हाट एग्जैक्टली विल कंसीडर विल बी E cos theta into ds. This is the electric flux from the surface of the conductor. क्या ये क्लियर हुआ? कितनी लाइंस पास हो रही है? सर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से only one electric field line is passing through it. Is that field line passing through the surface? Yes, that's flux. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Now sir. if I happen to go for electric flux का formula, what is electric field intensity at a point P? तो हाँ सर ये फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा. ये भी तो E है. यहाँ पे क्या होगा सर? 1/4 pi epsilon naught. Students, K for a medium. Agreed? Q by R square. पीछे क्या है? ds cos theta. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. What is ds cos theta upon R square students? तो क्या बोलोगे? What is ds cos theta upon R square? So the electric flux, infinitesimal electric flux passing through the infinitesimal area, it's 1/4 pi epsilon naught. K for a medium, Q यहाँ पे है, upon R square है. What is ds cos theta upon R square? Can I run d omega? Students, since Yes, d sir. cos theta into R square is equal to d omega, इसलिए मैंने solid angle का concept दे दिया था पहले. Sorry. ds cos theta upon r square is equal to d omega. Agreed? But are we trying to find out electric flux for area element or for the total surface? Total surface. So क्या करोगे? Total. Integration of infinitesimal electric flux. Answer to ना integration of infinitesimal electric flux around a closed loop or in an enclosed surface. See students, the circle on the integral sign speaks about that you're starting from point P and you're going all the way and coming back at same point. That means for the total surface, and the charge should be within that particular surface. ये बहुत important है Gauss theorem के लिए. So it's integration of d phi we consider. That is integration of q into d omega upon 4 pi epsilon naught k for a medium into r square. What is integration of d phi e? Can I say it's the total electric flux? ये total हो जाएगा. यहाँ पे constant terms cannot be integrated. तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे मैं q को बाहर निकाल दूंगा, 4 का बाहर निकालूंगा, epsilon naught k for a medium बाहर आ जाएगा. Agreed? Is that clear, students? Yes, sir. Okay. Now, if I happen to consider students, ये जो d omega है, can I say this is actually considered? Sorry, ये आपके नीचे में. ds cos theta upon r square. Students, ds cos theta upon r square is d omega, तो simply d omega ही होगा. तो integration of क्या हो जाएगा? d omega होगा. What is integration of d omega, students? What is integration of d omega? Sir, 4 pi. Absolutely correct. Yes, sir. 4. ये तो हम लोग ने पहले डिराइव किया. ये देखो ना, ds cos theta upon r square. ds cos theta upon r square तो मैंने d omega लिख दिया. यहाँ पे मेरा d omega है, constant term. तो मैंने वहाँ integration of this. तो कहना चाहिए total electric flux क्या होगा? So total electric flux is equal to q upon 4 pi epsilon naught k for a medium into 4 pi. 4 pi and 4 pi will get cancelled. So now what is the statement? Now what is the statement, students? Total electric flux. Which total electric flux for a closed surface. Students, total electric flux for a closed surface is equal to 1 upon dance sunna epsilon 0 k for a medium into the charge enclosed in a surface.
into the charge enclosed in that surface. अभी यहाँ पे मेरा एक चार्ज था स्टूडेंट्स, देखो ना मेरा एक से ज्यादा यहाँ पे। अगर सपोज मैंने इसको Q1 लिया होता तो ध्यान से देखना, मैंने अगर Q1 लिया था तो मेरा फॉर्मूला में Q1 आता, हाँ या ना? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, अगर sir. suppose मैंने दूसरा चार्ज लिया होता तो कहने से इसके साथ में मेरा Q2 भी तो ऐड होता, Q3 भी तो ऐड होता, है ना? इफ आई गो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? तो the total electric flux is 1 upon epsilon naught K for a medium, or can I have an epsilon for a medium? Algebraic sum of Qi. Since algebraic sum of Qi, where Yes, I stands for the first charge, so I stands for nth number of charge, या integration of PQ, that is Q. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? yes, sir. हाँ सर क्लियर है। तो जब भी तुम गॉसेस थ्योरम यूज कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो गॉसेस थ्योरम है क्या? गॉसेस थ्योरम के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि गॉसेस थ्योरम कैन बी कंसीडर्ड व्हाट? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is actually what? 1 upon K times epsilon 0 into Q, or 1 upon epsilon for medium into Q, और ये algebraic समय ही आएगा हमेशा। ये तुम्हारा फॉर्मूला। क्या ये क्लियर हुआ? सर पर वो 4 पाई स्फीयर के लिए रहता है ना कि तो हम जितने ये देखो ना, ये एसिमेट्रिकल शेप था स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको इमेजिनरी अगर मैं करूँ तो ध्यान से देखना, अगर मैं ये देखो ना, ये इरेगुलर शेप था, हेलो, लेकिन अगर मैं इमेजिन करूँ इसको, मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने एक आर्क का रेडियस लिया है और एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया। अभी देखो ना, मेरा चार्ज इज इट विद इन दिस पर्टिकुलर स्फीयर, और ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया मेरा। अभी इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या ना, इसे दिस बिकम्स 4 पाई r स्क्वायर ओनली। यानी कोई भी तुम ज्योमेट्रिकल शेप ले लो, वी कंसीडर, आई कैन कंसीडर इन टर्म्स ऑफ इट, व्हाई नॉट? एंड माय चार्ज इज इनसाइड इट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब भी फॉर्मूला तुम आते हो ना उसमें, सो फ्लक्स इज ऑलवेज E cos थीटा इनटू ds। अगर स्मॉल मान लो फ्लक्स होगा तो E cos थीटा इनटू ds होगा। इंटीग्रेशन, ध्यान से सुना, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। नाउ कैन आई इरेज दिस स्टूडेंट्स? सर एक मिनट। डन सर। ओके,
Yes, students. So now when you speak about for your Gauss's theorem students, so what exactly the formula I'll put forward? When we speak about for Gauss's theorem students, statement क्या होगा तुम्हारा? That is, this is actually for a closed surface, so always. Whenever you go for it, students, for a closed surface, okay, for a closed, whether it's regular or irregular surface. Students, for a regular or irregular surface, students, the total electric flux, okay, the total electric flux for a closed, regular or irregular conductor is 1 upon epsilon times 1 upon epsilon for a medium times algebraic sum of qi, where I equal to 1 to I equal to n, or 1 upon k epsilon 0 into capital Q, that is the total charge, net Q. तो तुम Q upon k epsilon 0 भी लिख सकते हो students. What is electric flux? So electric flux is simply E dot, अगर मैं सपोज छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे ds आ जाएगा, है ना? उसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैंने इंटीग्रेट b5 को इंटीग्रेट करूंगा तो E डॉट ESC आएगा मेरा. यस, यानी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो छोटा था एलिमेंट था उसको इंटीग्रेट करूंगा तो आई कैन कंसीडर E डॉट ds. तो कैन आई E डॉट ds कैन आल्सो कंसीडर एज Q अपॉन k एप्सिलॉन 0. व्हाई नॉट? यानी सिर्फ मैंने फ्लक्स को सब्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट्स. तो जब भी किसी ने पूछा गॉसेस थ्योरम है क्या, तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि गॉसेस थ्योरम इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड इन अ गिवन सरफेस. अब ये सरफेस क्या होना चाहिए? क्या वो रेगुलर, इरेगुलर, कुछ भी हो चलेगा. So what exactly the total electric flux? It's either 1 upon epsilon times medium net charge q, or 1 upon k epsilon 0 net charge q. What is d phi e? D phi is equal to E dot ds. If I happen to go for integration of d phi around the closed surface, that is integration of E dot ds, and that is if phi is equal to this, so even this is also equal to this. और यही चीज हमें यूज करना है सारे एप्लीकेशंस. अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Is it clear? सर बोलो. सर हाँ बोलो. सर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल का फॉर्मूला दिया था ना, उसके बाद में ये नोट ही लिखवाया क्या? हाँ बस नोट ही बताया मैंने. ये नोट ही बताया मैंने. ये गॉसेस थ्योरम को वापस मैंने रिपीटेशन किया है और ये हम यूज करेंगे अभी डेरिवेशंस में. Can I proceed, students? 1 minute. Yes, sir. Now let us go for the first proof, students. Okay, we are trying to go for electric field intensity, students. We have to find out electric field intensity at a distance r, small r, from a spherical conductor that is electrically charged. With answers, students. Okay, suppose अगर मैं तुम्हें spherical conductor दूं, students, radius of this conductor is capital R, and this conductor is electrically charged. The charges are uniformly distributed, students. It's a regular shape, regular. मुझे पूछा गया what is the electric field intensity at a distance r. यानी from the center, students, from the center पे क्या करूंगा?
I take a point P. Agreed? तो ये जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है वो होगा R फ्रॉम द सेंटर लाइन कंसीडर। मुझे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स एट अ डिस्टेंस R from a spherical conductor. How do you find out for this? So it's now easy enough. अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो कैन आई यूज गॉसेस थ्योरम? हाँ सर, गॉसेस थ्योरम यूज कर सकते हो, लेकिन सर गॉसेस थ्योरम का सबसे पहला रूल ये होना चाहिए दैट द चार्ज बॉडी शुड बी और द चार्ज शुड बी enclosed inside the conductor, यानी द चार्ज शुड बी enclosed inside a Gaussian surface। तो यहाँ पे मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। मेरा मेन सिलेंडर तो यही है, सॉरी मेरा मेन स्फीयर तो यही है स्टूडेंट्स, मेन स्फीयर ये है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं हाउ इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर, तो तुम क्या बोलोगे, सर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड थ्रू आउट द सरफेस। तो हाउ इज दैट? सर सिग्मा दिया है, सिग्मा क्या है, सर सिग्मा इज चार्ज अपॉन यूनिट एरिया 4πr²। एग्रीड ना, रेडियस इज आर। मुझे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी दिया, तो मैं करूँ क्या सर, ऐसा करते हैं ना, हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी टेकिंग O as a center, radius equal to small r, what am I trying to do? So you try to construct a Gaussian surface. देखो एक इमेजिनरी स्फीयर आ गया है ना, ये गॉसियन सरफेस हो गया। अभी देखो ये चार्ज बॉडी कहाँ पे, अंदर की तरफ है। अरे हाँ सर, लेकिन क्या, ध्यान से सुनना, अगर मेरा स्फीयर मैं यही कंसीडर करता हूँ डॉटेड वाला, so students, should I consider the charge be inside? No, I always try to take the charge to be on the surface because the resultant electric field intensity inside should be always 0. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी देखो ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस हुआ। अभी गॉसियन सरफेस दिखता है कैसा है सर, वो भी तो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, जिसका रेडियस आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसी के ऊपर मैंने एक अपना एक एरिया एलिमेंट ले लिया, मैंने छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। Now when you look into it, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट P है। How is the area element? So the area element will be normal to the surface. So जैसे सरफेस होगा ना, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सपोज अगर सरफेस ऐसा है तो ये एरिया वेक्टर होगा, सरफेस ऐसा है तो ये एरिया वेक्टर होगा, सरफेस ऐसा है तो ये एरिया वेक्टर होगा। कैसे भी तुम सरफेस रखो, एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, तो देखो ना, आपने पॉजिटिव चार्ज ये है, उसको आपने इमेजिन किया ऑन द सरफेस, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सर अंदर तो हम दिखाएंगे नहीं, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ ही होगी एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन मींस इज माय ई एंड डीएस आर दे इन सेम डायरेक्शन? हाँ सर, ई एंड डीएस सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये क्या होगा सर, ई बार इज पैरेलल टू डीएस बार, तो थीटा क्या बन जाएगा, 0 cos of 0 क्या बन जाएगा 1, यानी कहने से मैं फ्लक्स इज मैक्सिमम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है मैक्सिमम। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. now can you get the answer? हाँ Yes. सर क्लियर। What exactly Gauss's theorem? Gauss's theorem क्या बताता है? Please, अभी इसको डिराइव करने के लिए क्या करोगे? Use Gauss's theorem. What exactly it is? The total electric flux around a closed surface, ध्यान से सुनना, is equal to what? 1 upon k times epsilon 0, the net charge enclosed into the surface. ये तुम्हारा का फॉर्मूला है। Also, what exactly is the total electric flux क्या है? What is total electric flux? Sir, it's integration of E cos theta into ds, है ना? ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। Our left hand side is equal. Our left hand side is equal. हाँ sir, can I equate right hand side? क्यों नहीं? क्यों नहीं? I can equate right hand sides also. अगर मैं equate तो right hand side में तो क्या, integration of E cos theta is cos of 0 into ds is equal to 1 upon k epsilon naught q आ जाएगा। What is cos of 0? 1, है ना? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडर है, ये तो मुझे चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करना है ना। हेडिंग क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रेजिस्टेंस R चाहिए, तो मुझे E फाइंड आउट करना है, तो मैंने बाहर निकाल दिया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds? तो इंटीग्रेशन ऑफ ds किसका, इंटीग्रेशन ऑफ ds किसका, मेन स्फीयर या गॉसियन स्फीयर? गॉसियन स्फीयर, ना कि मेन स्फीयर। हेलो, ना कि मेन स्फीयर। ये जो ds है गॉसियन स्फीयर के बारे में बता रहा है।
तो गॉसियन स्फीयर का कर्व सरफेस क्या होगा सर, रेडियस तो r है, तो कहना सर ये होगा e into 4 pi small r square is equal to q upon k epsilon 0. So what's the formula? So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k for a median, q upon r square. And this answer will be Newton per the meters. Can you clear what students? Students, this is the electrical intensity. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, how exactly electrical intensity कम होगा, what kind of a graph will be? ध्यान से देखना अभी, अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और पोजीशन के हिसाब से ग्राफ लिया तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, इनसाइड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कभी हम लोग लेते ही नहीं है, इट्स ऑलवेज जीरो, यानी तुम्हारा सरफेस से ही शुरू होगा, ग्राफ विल बी एक्सपोनेंशियल, E inversely proportional to R square. It is maximum on the surface, inside it is zero. Potential inside and on the surface remains constant, but as we go further, potential goes on decreasing. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. अगर suppose मैंने पूछा can you find out the electric field intensity with respect to the spherical conductor? Yes, in terms of sigma. क्यों नहीं? ये देखो Q क्या है? Everybody, please consider over here. Q की जगह पे students. सर आपने एक्सेस एक्सेस पे क्या लिया? क्या x axis r दिया ना, पोजीशन दिया लो, x को मैंने पोजीशन दिया. I'm taking it from here, but the position from the surface I'm taking it. जैसे जैसे मेरा r बढ़ता रहेगा, what happens? It will go on decreasing. It is maximum on the surface. Clear? हाँ सर. Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? यस. I'm still keeping this, because I need to derive few more derivations. इसके लिए हम यही use करेंगे students. So electric field intensity students at a distance we consider is 1 upon 4 pi epsilon naught k for a median. It's q upon r square. If I happen to write down electrical intensity with respect to surface, I'll consider. So since we know that sigma is equal to charge per unit area, और जब भी तुम sigma use करोगे ना students, तभी भी ये type के problems के लिए spherical conductor का कोई भी irregular तो हमेशा sigma is equal to charge, जो main तुम्हारा sphere था उसको लेना है students. The charge is distributed on my main sphere, not on the Gaussian. हम Gaussian surface को यहाँ पे नहीं लेते, जब भी हम sigma के बारे में बात करेंगे. So sigma is surface charge density, so it's 4 pi capital R square. Can I substitute Q over here? What's my formula for electric field intensity? So it's 1 upon 4 pi epsilon for a medium. Instead of sigma, can I put, instead of Q, can I put sigma into 4 pi capital R square upon small r square. 4 pi and 4 pi will get cancelled. So what's the electric field intensity? Electric field intensity for a point students we consider for in comparison with respect to main sphere students. तो क्या आंसर है तुम्हारा? आंसर देखो, sigma capital R square upon epsilon for a medium into small r square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये क्या है स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला क्या है मालूम है? Comparison of electric field intensity for a point R in terms of it and very close to it we consider. यानी इनके बीच में, स्मॉल और कैपिटल R के बीच में. अगर सपोज मैंने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके,
very close to spherical conductor, तो क्या होगा? तो can I say my small r will be nearly equal to capital R students? हाँ, है ना? अगर मेरा small r is nearly equal to capital R, तो what is electric field intensity? Near, the answer is near any shaped conductor, because Gauss's theorem is applicable for regular or irregular shaped conductor, for any shaped conductor. अगर मैंने small r को capital R लिया, तो what's my formula? Sigma upon epsilon for a medium, or sigma upon k epsilon 0 for a medium. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. What is electric field intensity inside? Is always 0. मैंने देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, E inside 0. Electric field intensity for a charge very close, sigma upon. अगर सपोज तुम्हें वापस सिग्मा का फॉर्मूला डालना है तो क्या डालोगे तुम? वेरी क्लोज पूछा मैंने स्टूडेंट्स, वेरी क्लोज, तो सिग्मा को क्या डालोगे? सिग्मा को क्या डालोगे? ये डालोगे ना? आ गया तुम्हारा सरफेस के ऊपर? ये सरफेस का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, ये वेरी क्लोज के हिसाब से हुआ। यानी कोई भी मैं इरेगुलर शेप बॉडी भी दूंगा ना स्टूडेंट्स, ब्लाइंडली ये फॉर्मूला तुम्हारा जैकपॉट फॉर्मूला स्टूडेंट्स। कहां पे भी तुम्हें फॉर्मूला नहीं समझ में आता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी शेप कंडक्टर, डायरेक्टली सिग्मा अपन एप्सिलॉन फॉर मीडियम डाल देना, या सिग्मा अपन के एप्सिलॉन 0। बहुत सारे एमसीक्यूज इसी से सॉल्व होते हैं। हाँ, फिर तुम्हें ध्यान में रहना कि सिग्मा क्या लोगे तुम, तो चार्ज और जो तुम्हें सरफेस दिया है, कंडक्टर दिया है, उसका शेप देखते हुए उसका एरिया ले लेना। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. So this is a formula with respect to spherical conductor. Now suppose if I happen to go for cylindrical, can you get an answer for electric field intensity at a distance small r from uniformly charged cylinder? Okay, देखो मैंने एक सिलेंडर लिया है, ये इसका एक्सिस है स्टूडेंट्स, radius of the cylinder is capital, the length of the cylinder is capital L, and this cylinder students is uniformly charged distributed throughout its length. यानी कहने से throughout its length, what is throughout its curve surface, यानी मैं क्या करूंगा, चार्ज पूरे उसके लेंथ के अराउंड है, यानी मैं यहाँ पे पूरा एक पॉजिटिव चार्ज में बता दूंगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मींस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा। फ्रेंड्स लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम मीटर इनवर्स होगा। यहाँ पे सरफेस आ रहा है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ वी कंसीडर। मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें दिया है चार्ज सिलेंडर, ये है एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल आर। स्टूडेंट्स आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, distance r from the center of the charged cylinder. Can you find the electric field intensity at the point P? Can you get an answer for this? तो डिराइव कर सकते स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसका डिराइव किया था एग्जैक्टली वैसे इसको डिराइव करते। यानी तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोसेस थ्योरी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर है? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? फाइनल ना तो बोलो।
Is anybody? Sayyad, Ayush, Harsh, Divesh, Haransh, ये सब नए स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे. आदित्य, अंकित, भार्गव, दीप, हर्षिता, नौमन, निधि, राशि, प्रिया, Sir, ऋषभ, रिया, शैली, राज, तीर्थ, सिद्धम, प्रिया, शान्या, शाना, जाश, कमान, तारिक. कोई डिराइव कर सकते स्टूडेंट्स? sir, हाँ बोलो. sir, 1 pi 4 pi epsilon 0 into Q upon RL small r. Q अपॉन R into L. 4 आएगा नीचे. सर वो कांस्टेंट 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon R into L. लेकिन मेरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? वो तो स्फीयर था इसलिए 4 पाई r स्क्वायर. सिलेंडर का क्या होगा? 2 पाई RL होगा ना. डीप. हाँ सर. इंटीग्रेशन करेगा ds का. हेलो, तो क्या होगा? है ना, 2 पाई RL होगा ना मेरे भाई. कर्व सरफेस एरिया आएगा ना. हाँ सर. तो 4 नहीं आएगा ना. तो तेरा फॉर्मूला सही है, लेकिन तेरा सिर्फ 4 की जगह पे 2 लिखना है. सी स्टूडेंट्स. और लैम्बडा और तो जो q बाय l आता है, न्यूमरेटर में q आएगा, डिनोमिनेटर में l आएगा, उसकी जगह पे लैम्बडा लिखना है. एग्री? हाँ सर 2 आएगा. यस. सर ई के नीचे क्या लिखा है आपने? किसके नीचे? स्टूडेंट्स सर मेरे ई मुझे के नीचे बताओ. एकदम. wait a minute, okay? I'm asking to all the students. Harsh, you also. मुझे बताओ, क्या ये ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स? जेन्युइनली बताओ. सर क्लियर है. तो और ये जो लेक्चर्स में लेता हूँ स्टूडेंट, जब मैं लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, तो इज इट क्लियर पॉसिबल, मीन्स तुम्हें सही तरीके से दिख रहा है, सुनाई दे रहा है सही तरीके से? यस सर. अभी हर्ष तो क्या पूछ रहा था? ये लैम्बडा मैंने लिखा है. लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. उसका यूनिट लिखा है मेरे भाई, कूलम मीटर इनवर्स. तूने ये पूछा ना मुझे, ये पूछा था अभी. नहीं एकदम नीचे सर, ई के नीचे. ये वाला. अच्छा सर ये लेफ्ट साइड में थोड़ा. electric field intensity near any shaped conductor. Electric field intensity for a point near any shaped conductor. Electrically charged conductor. तो तुम्हारा फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन फॉर अ मीडियम या सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो फॉर के मीडियम. तू कॉपी कर रहा है, लेकिन तेरा ये कंसेप्ट तो तेरे को समझ में आ रहा है ना? हाँ हर्ष प्लीज. तो कॉपी कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ के करना. ऐसा नहीं कि सिर्फ तू कॉपी करेगा और समझ नहीं रहा है, वो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, कैन आई डिराइव फॉर द स्टूडेंट्स? अब देखो, दीप ने ऑलरेडी आंसर दे दिए. आंसर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए. आंसर सुना एवरीबॉडी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी. तो मैं क्या करूंगा मालूम है? तो तुम ये बोलोगे सर, आपको एट अ पॉइंट पी फ्रॉम अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर. तो सर ऐसा करते हैं ना, अगर आप गॉसेस थ्योरम यूज करोगे, तो गॉसेस थ्योरम के लिए मुझे एक इमेजिनरी सरफेस तो बनाना पड़ेगा. तो अभी अभी इमेजिनरी सरफेस क्या हो सकता है, उसके ऊपर तुम्हें कॉल लेना पड़ेगा. तो इमेजिनरी सरफेस यानी क्या मैं इसको रेक्टेंगल बनाऊं, क्या उसको मैं सर्कल बनाऊं, क्या मैं उसको स्क्वायर बनाऊं, या अगर ये सिलेंडर है तो मैं ये सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के अंदर रख दूं. तो स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस जो हम करते हैं ना इमेजिनरी, वो ऑलवेज यू ट्राई टू गो फॉर अ सरफेस व्हिच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू अ गिवन चार्ज सिलेंडर. ये तो यहाँ पे चार्ज सिलेंडर दिया, तो उसी की आइडेंटिकल शेप लेते हैं हम. यानी अगर मैंने गॉसियन सिलेंडर लिया ना स्टूडेंट्स, तो मेरा गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्टूडेंट्स, माय गॉसियन सरफेस विल बी इन दिस मैनर.
and take this. ये हुआ मेरा गॉसियन सिलेंडर, और इसको मैंने कहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स? इसको मैंने अराउंड लिया है। हेलो, पूरा लेंथ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा लेंथ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक इतना सा पार्ट लिया, क्यों? क्योंकि मुझे फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से चाहिए अराउंड द क्लोज सरफेस। तो अगर मैंने ये वाला लिया तो उसका लेंथ क्या होगा? एल होगा स्टूडेंट्स, ये एल होगा, है ना? इसका रेडियस क्या होगा? स्मॉल आर होगा गॉसियन सरफेस का। If I happen to look, where is the point P now? So the point P is on the surface. तो अगर चार्ज यहाँ पे है तो can I assume the charge is now over here? Yes, the charge will be on the surface. Gaussian surface के लिए क्या होना चाहिए? So the charge should be enclosed inside. लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हमेशा जीरो लेते हैं, तो हम अज्यूम करेंगे चार्ज सरफेस पे। चार्ज यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी है, लेकिन हम एक जगह की बात करेंगे। क्या इतना सा डायग्राम क्लियर हुआ? सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ूंगी तो इट्स ऑफ नो यूज। Yes. हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर अलोंग द लेंथ वी कंसीडर। तो सबसे पहले द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सो लैम्डा इज इक्वल टू q upon capital L, which can be written as q upon small l also, doesn't matter. If I want to find out electric field intensity, so I have taken a Gaussian surface. The Gaussian surface is again my cylinder, because my main cylinder should get enclosed. अभी मेरा पूरा सिलेंडर अंदर नहीं आ रहा है, मैंने पार्शियल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पूरा भी ड्रॉ करेगा ना, कोई भी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, ये स्मॉल एल लिया, मेरा कैपिटल एल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यू कैन कंसीडर दैट मैनर आल्सो, डजंट मैटर। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा लिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जीरो होनी चाहिए। चार्ज मैं सरफेस पे ले लूंगा। अभी देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि अगर मैं एरिया वेक्टर, ध्यान से सुनो, अगर मैं एरिया लूंगा तो एरिया किसका लूंगा? सर एरिया विल टेक इट फॉर द कर्व्ड सरफेस, ये होगा तुम्हारा इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट का एरिया। देखो, लुक एट द एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स, look at the area vector. The area vector and the electric field intensity, both of them are in same direction. ये देखो स्टूडेंट्स, मेरा ये है गॉसियन सिलेंडर, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। ये है मेरा गॉसियन सिलेंडर, एग्रीड? ये है लेंथ एल, ये मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना? अभी सपोज मैंने तुम्हें एरिया वेक्टर ढूंढने के लिए बोला, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप हमेशा एरिया वेक्टर इधर ही क्यों लेते हो, क्यों ना यहाँ पे लेते हो, ये भी तो एरिया वेक्टर है ना, लो ना, किसने मना किया? प्लेन सरफेस। स्टूडेंट्स ये सिलेंडर है, ये पेन सिलेंडर दिख रही है, तो ये जो टॉप पोर्शन वो ये पार्ट होगा। मैंने एरिया वेक्टर किसका लिया? साइड का लिया स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर इसका लिया। अगर मैं टॉप पोर्शन लूंगा तो स्टूडेंट्स ये एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है, हाँ सर, लेकिन अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ है? सर वो तो अलोंग लेंथ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है। Is there any electric field intensity normal to the plane surface? नहीं। No, sir. तो ये देखो, ये E इस तरफ जा रहा है, ये ds इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री होगा। अरे सर फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि it's E cos 90 into ds हो जाएगा, and cos of 90 जीरो। तभी जाके स्टूडेंट प्लेन सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर लेते नहीं, हम सिलेंड्रिकल पार्ट में ही घूमते रहते हैं। पता चला भी हम ds उस तरफ ही क्यों घूमते हैं, क्यों नहीं ऊपर, क्यों नहीं नीचे? क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ गिवन सरफेस। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now students, if I happen to go for electric field intensity at the distance r we consider, so now what exactly consider? So same, exactly same format. What's the total electric flux? The total electric flux will be equal to what? Q upon A epsilon zero, या epsilon zero for a medium, है ना? ये कहाँ से आया?
तो तुम बोलोगे फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, है ना. What exactly total electric flux is also integration of E cos of 0 into ds. Cos of 0 देखो ये थीटा 0 है, so cos of 0 1 हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हमेशा ये यूज करना. राइट हैंड साइड इक्वेट करो, so E cos of 0 will be 1, so integration of ds is equal to q upon k epsilon 0, है ना. What exactly integration of ds क्या होगा? So for the Gaussian cylinder, if I consider what is the curved surface area, the curved surface area will be equal to 2 pi r into the length, which is equal to q upon k epsilon 0. What's the formula for electric field intensity? 1 upon 2 pi k for a medium epsilon 0 q by l into r. So what is q by l? What is q by l? Lambda, charge per unit length, upon 2 pi k epsilon 0. Okay, now put epsilon for a medium into small r. This is the formula for electric field intensity for a distance r from the center of a uniformly charged cylinder. What is lambda? Charge per unit length. तुम यहाँ पे capital P by capital L भी लिख सकते हो. यूनिट क्या है? न्यूटन कूलम्ब इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स. क्या ये डेरिवेशन क्लियर होगा? Yes, sir. अगर सपोज if I happen to consider the charge, अगर सपोज मैंने बोला करके I want to find an answer, I want to find an electric field intensity for a point very close to the charge, very close, है ना, very close. तो मैंने क्या बोला था? Can I use this formula directly? Students? E is equal to sigma upon k epsilon 0. What is sigma? Wait a minute. Wait a minute. Who's this? Norman. My dear. ये है k for a medium epsilon 0. Norman, और यहाँ पर सिर्फ epsilon for a medium लिखा मैंने, यानी k को लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, Norman? Yes, sir. Agreed? Yes, sir. Can I write in terms of sigma, students? Can I write on the same relation in terms of sigma? Yes, sir. तो sigma क्या होगा? Sigma क्या होगा sir, students? Charge per unit area. What is the area of my main cylinder? क्या होगा? 2 pi r into L, है ना? Q upon, ध्यान से देखना, Q upon नीचे क्या आएगा? Students, sigma की हिसाब से अगर मैं लिखूं, हेलो, once again, everybody, थोड़ा ध्यान दो. अगर मैंने पॉइंट P को नजदीक लिया, मैंने पूछा व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ सिलेंडर, तो ये फार्मूला लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू. एरिया, मेरा मेन सिलेंडर का एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया. 2 पाई कैपिटल आर एंड कैपिटल एल. आ गया तुम्हारा फार्मूला, इसी के फॉर्म में आया. देखो ना, नीचे क्या हाँ आएगा? सर. 2 पाई के एप्सिलॉन 0, ऊपर क्यू आएगा. यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एल आ गया, बस दैट्स ऑल वी कंसीडर. एग्रीड. और यहाँ पे कैपिटल आना जाएगा. फ्रेंड्स, कुछ समझ में रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंड गेट द आंसर अकॉर्डिंगली. यू कैन फॉरगेट इट. यानी ये एक रामबन फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये मोस्ट एनी शिप कंडक्टर के लिए चला जाता है. ये बहुत ध्यान में रखना. कभी भी अगर नहीं समझ में आता तो तुरंत इसको अप्लाई कर देने का. हाँ, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? वेरी क्लोज या ऑन द सरफेस. लेकिन किसके लिए? फॉर योर मेन सिलेंडर स्टूडेंट्स. जो मेरा मेन कर्व सरफेस होगा, मेन ऑब्जेक्ट होगा, उसी के लिए है, नॉट फॉर द गॉसियन पार्ट ऑफ इट. कैन आई इरेज दिस नाउ स्टूडेंट्स? क्या इसको इरेज कर दूं मैं अभी? इरेज करूं मैं?
अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. अगर किसी ने पूछा गॉसेस थ्योरम कभी पढ़ोगे, तो गॉसेस थ्योरम का पढ़ना कभी होता है जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स अगर ये तुम पूरा चैप्टर को अगर तुम एनालाइज करो ना, तो तुम पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हो। हाउ टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हो, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अनचार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे करते हो उसके बारे में पढ़ोगे। फिर अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर में नजदीक लेके आता हो तो कैसे होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर मैं कांटेक्ट में रखूंगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, अगर मैंने दूर रखा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे तुम्हारा वो कंसेप्ट खत्म हो जाता है तो सबसे पहले तुम्हारा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर तुम पढ़ोगे, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो चार्जेस के बारे में पढ़ोगे। फिर उनके बीच में वेक्टर फॉर्म लिखोगे, स्केलर फॉर्म लिखोगे। फिर अगर एक चार्ज है और उसके अराउंड मैंने दूसरे अलग चार्जेस रखे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स आ गया। स्टूडेंट्स तो बेटे बेटे यू स्टार्ट डेवलपिंग योर चैप्टर, तुम्हें पता होगा ना कि कंटेंट क्या है। तो जैसे Yes. तुम फोर्स के ऊपर आता है तो तुम्हारा वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, के आ गया कंसेप्ट। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसके लिए हम जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है, सो जिनका जिनका सेंटर ऑफ चार्जेस आर एट अ सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और वो नेचुरल डिस्टेंस होता है उनके बीच में। एग्जांपल मैंने वाटर मॉलिक्यूल दिया था, तो पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। नॉन पोलर के अंदर स्टूडेंट उनके बीच में नेचुरल डिस्टेंस होता नहीं है, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी कंसिडर, तो वो एक डाइपोल क्रिएट करते हैं। तो अगर वैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको नॉन कंडक्टिंग हम लेते हैं तो वहां पे फील्ड लाइंस पास होगी। पूरा कंसेप्ट बताया था नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है, के फॉर अ मीडियम क्या होता है, के फॉर अ मेटल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हाउस फोर्स विद के, हाउस इलेक्ट्रिक फील्ड विद के, ये सब कुछ हम लोगों ने समझा था। फोर्स के बारे में समझा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ा। फिर अगर मैंने नेबरिंग में सिस्टम ऑफ चार्जेस लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रेस्ट ऑफ चार्जेस, तो वहां पे भी तुम्हारा वेक्टर सम आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस आ गया। तो समझ में आ रहा है हाउ एग्जैक्टली द टारगेट, जैसे फोर्स आया इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुआ, तुरंत तुरंत हम चाहते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। ई और एफ खत्म हो गया तो तुम्हारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ गया। फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आ गया, स्केलर क्वांटिटी वहां पे नीचे आएगा। जैसे तुमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट ले लिया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आया, पोटेंशियल एट इंफिनिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। स्टूडेंट्स व्हाट इज इट, पोटेंशियल एट इंफिनिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होगा हमेशा, जीरो। दीप है क्या, चला गया दीप, चला गया, देखा। अरे है दीप, दीप आंसर क्यों नहीं दे रहा है। So we learned about potential at a point and potential energy के बारे में, potential energy due to unit positive charge, potential energy due to system of charges के बारे में हम लोग ने पढ़ा। Agree students? फिर हमने हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव dV by dr पढ़ा। हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कंसीडर विद इन अ डाइलेक्ट्रिक। बाहर की तरफ तुम्हारा ई नॉट, अगर ध्यान से मालूम है तो मैंने बोला था ई नॉट इज द फील्ड आउटसाइड, ड्यू टू द डाइपोल देयर इज अ नेट ई इनसाइड, सो द डिफरेंस बिटवीन इज अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड भी कंसीडर, वो कम हो जाती है किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अगर रोज मैंने मेटालिक प्लेट ले लिया तो चार्जेस तो मोशन में आ जाएंगे, करंट आ जाएगा। वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट मोशन ऑफ चार्ज, वी आर स्पीकिंग अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर जैसे हम डाइपोल के बारे में पढ़ा तो तुम्हें डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा, है ना। वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वी कंसीडर इन दैट केस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा। फिर if I happen to take an electric dipole in an external uniform electric field तो क्या होगा, it experiences a torque. The torque acting on a dipole P bar cross E bar. What is the work done in rotating a dipole?
तो क्या होगा, माइनस पी इंटू ई वी कंसिडर, यानी वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, पी ई साइन थीटा वी कंसिडर इन दैट केस. वो डिपेंड्स, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वी कंसिडर, इनिशियल माइनस फाइनल वी कैन कंसिडर. तुम्हारा वर्क डन में आएगा फॉर्मूला, यू कैन फाइंड आउट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. फिर हम लोग ने डाइपोल को लेते हुए वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis of a dipole, electric field intensity along the equator of the dipole, E axial is equal to twice E equatorial. जैसे ये दोनों खत्म हो गया, then we will for dipole के हिसाब से potential at the equator and potential at the axis and potential at the equator. फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, p cos theta upon r square के हिसाब से आता था. इक्वेटर पे सॉरी एक्सिस पे लोगे तो प्लस और माइनस में आंसर आ रहा था, बिकॉज cos of 0 and cos of 180. स्टूडेंट्स कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ डाइपोल का डिनोमिनेटर में r क्यूब आता है, शॉर्ट डाइपोल, लेकिन मैं पोटेंशियल के बारे में बोलूंगा तो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में p cos थीटा. दीप, आर यू देयर? यस सर. समझ में आ रहा है फॉर्मूलाज कि नहीं? हाँ है सर. ना, भूल गया ना? वही अगर मैंने शॉर्ट डाइपोल नहीं नहीं बोला, सर. वही अगर मैंने शॉर्ट डाइपोल नहीं बोला, मैंने एक्सिस लिया स्टूडेंट, मैंने एक्सिस लिया और पॉइंट p यहाँ पे है, पॉइंट p यहाँ पे, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या था, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर. क्योंकि देखो ना स्टूडेंट्स, ये मेरा डाइपोल है, ये मेरा डाइपोल है, ये सेंटर से ये डिस्टेंस r है स्टूडेंट, सेंटर ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से यहाँ पे मेरा डिस्टेंस r है, ये तो तुम्हारा l है, तो एक होगा r माइनस एल और दूसरा होगा r प्लस एल, तो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही आएगा, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एक r बचेगा. एंड स्टूडेंट्स मैंने ये भी बताया था याद कैसे रखना है इसको, वही अगर मैंने इक्वेटर पे ले लिया तो एक l आ गया स्टूडेंट्स, एक l आया, यहाँ पे r आया, यहाँ पे ये l आया, यहाँ पे r आया, तो यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूज ले लिया था, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया, रूट में आ गया, तो तुम्हारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आता है, इक्वेटर के लिए r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज द पावर ऑफ 3/2. फिर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए लेते हैं तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे r के पास आता है. So potential at an फिर किसी पे consider potential at equator will be always zero, potential at axis plus or minus e for any arbitrary position के लिए under root 3 cos square theta plus 1 मैंने बोला था. जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हारा पोटेंशियल भी कंसीडर, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस भी कंसीडर. No work is said to be done on equipotential surface if I'm making a chance to move from one point to another on an equipotential surface. No work is said to be done on equipotential surface. उसी के पीछे मैंने लैम्डा भी बता दिया था, सिग्मा भी बता दिया था, everything I've told you about that. We did lots of questions also based on that. Yes, sir. फिर हम लोग गए, अभी आज हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर लिए, बस उससे किए, उसके एप्लीकेशंस किए. एक एप्लीकेशन और एक, सपोज अगर मैंने तुम्हें इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, एक मैंने फॉर एग्जांपल ये जो सामने व्हाइट बोर्ड है उसको मैंने पूरा इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया, ओके, और इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट. I want you to find out students electric field intensity at a distance r for an infinitely long electrically charged sheet. ये सोचो कि चार्ज एक यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है ना, ये चार्ज यहाँ पे है, तो पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिकली चार्ज है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना. Agreed? So this is, I need to find out electric field intensity at a point P. Okay. Electric field intensity for infinitely long charged sheet. कैसे करो? तो तुरंत तुम्हें बोलना है सर यहाँ पे गॉसियन सरफेस चाहिए, है ना? हाँ गॉसियन सरफेस चाहिए, लेकिन गॉसियन सरफेस चाहिए तो अभी ये तो सर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, यानी अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं भी, अगर मैं शीट एक्सपांड करूंगा तो मेरा गॉसियन सरफेस भी एक्सपांड होगा, कम करूंगा तो ये भी कम होगा.
लेकिन सबसे पहले तुम गॉसियन सरफेस कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे? such that the answer The सुनो, horizontal cylinder. such that the charge should be enclosed in that particular surface. तो या तो तुम स्फीयर बनाओ, Yes, sir. Sphere. या बस तुम क्या करो, सिलेंडर बना दो ना, सिलेंडर सबसे अच्छा। स्टूडेंट्स मेरे से ये आगे एरिया वेक्टर है ना, देखो चार्ज यहाँ पे है, क्या इसको मैं सरफेस पे ले लूं? अगर यहाँ पे सिलेंडर होगा, है ना, गॉसियन सिलेंडर मैंने यहाँ पे बना दिया, तो पीछे वाला चार्ज नाराज नहीं होना चाहिए, तो चल लो ना, उसके लिए भी बना देते हैं हम लोग। पीछे भी तो चार्ज है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी तो तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा ना, ds पर। एग्रीड? Yes, sir. Electric field intensity, so my positive charge is on the surface, positive charge is on the surface. Is there an electric field intensity over here? Why not? Is there an electric field intensity over here also? How's E and ds? तो दोनों पैरेलल है, थीटा 0 हो जाएगा। Yes, sir. ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है स्टूडेंट्स। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर मैं ध्यान से देखना, मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं बोलूँ, तुम बोलोगे सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। ध्यान से सुना, E डॉट ds फॉर द फर्स्ट साइड, ये सपोज मैं साइड 1 लेता हूँ और पीछे वाला साइड 2 लेता हूँ, प्लस कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds फॉर द सेकंड साइड। हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. what is total electric flux? What is total electric flux we consider is, बोले सर यहाँ पे तो cos of 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी cos of 0 1 हो जाएगा, है ना? तो ये क्या होगा सर, E into A हो जाएगा सर, ये भी E into A हो जाएगा because integration of ds will be A। तो क्या आंसर हुआ? Can I put this equation number 1? Yes, sir. Agreed? Are you getting it students? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Now, what is the second formula? Total electric flux का formula हमने और भी क्या लिया by Gauss's theorem? by Gauss's theorem क्या लिया? 1 upon epsilon for a medium, net charge enclosed the surface, ये क्या है? By Gauss's theorem. Norman, is it clear? I've written only Yes, epsilon sir. for medium, है ना? या क्या epsilon 0 is this? Our left hand sides are equal. Can I equal right hand side? So can I say twice E A is equal to Q upon K for a medium into epsilon 0. Therefore, what do I need to find out? I need to find out electric field intensity. Electric field intensity for an infinitely long sheet we consider as, यहाँ पे distance वगैरह कुछ नहीं है students, यानी I can take it for a point close, doesn't matter. Formula क्या है? देखो, Q upon 2K for a medium epsilon 0 into A. What is Q by A? Sigma. Sigma. Is this clear students? Yes, sir. यानी देखो तुम्हें फॉर्मूला क्या मिला स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity near an infinitely long sheet we consider as what? Sigma upon 2K epsilon 0. ये factor 2 किसके लिए आता है स्टूडेंट्स? If I happen to go for a sheet and the charge is on either side. Suppose अगर मैं कोई sheet लेता हूँ स्टूडेंट्स और चार्ज मैंने एक साइड पे रहता है, यहाँ पे there is no charge, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं स्टूडेंट्स, तो only on one side, what is my formula? Sigma upon epsilon 0. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कि नहीं था हमारा? हाँ सर। Yes, sir. अभी सपोज चलो ये तुम्हें याद ही नहीं है, चलो भूल गया, तुम्हारा इसका एमसीक्यू आया। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, तो तुम सबसे पहले इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट को तुम पॉइंट क्लोज रखो और एक साइड पकड़ो ना, तो इसका आंसर क्या होगा? सिग्मा अपन के एप्सिलॉन 0, बोथ द साइड्स आई विल डिवाइड बाय 2। दिस इज हाउ यू ट्राई टू रिमेंबर। ये हमने यहाँ से डिराइव किया, इसलिए 2 आ रहा है। अगर मैं एक साइड पकड़ूंगा तो 2 आएगा नहीं फैक्टर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
Students, is it clear? Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Yes, sir. Sir, 1 minute. Students, can I erase it now? Yes, sir. और यहाँ पे जब मैंने सिलेंडर बनाया स्टूडेंट्स, मैंने सिलेंडर बनाया, शीट यहाँ पे था स्टूडेंट्स, ये देखो ये शीट है, ये सोचो ये शीट है और मैंने ये गॉसियन सिलेंडर है मेरा, है ना स्टूडेंट्स, ऐसा ऐसा डायग्राम था, है ना। तो मैंने ई बार इस तरफ लिया, ए बार भी इस तरफ लिया, क्योंकि चार्ज यहाँ पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कम। क्या मैं यहाँ का एरिया ले सकता हूँ? अगर एरिया वेक्टर मैंने ये लिया होता, चार्ज तो इस तरफ है, फील्ड इस तरफ जा रही है, तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाती है, यू कांट टेक एरिया वेक्टर फॉर कर्व सरफेस। स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? जब भी हम सिलेंडर के बारे में बात कर रहे थे, इसके अगले वाले प्रूफ के हाँ लिए, सर, है ना, तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने कर्व एक सरफेस लिया कर्व था। सरफेस पे लिया था, है ना, कर्व सरफेस पे लिया था, प्लेन सरफेस पे नहीं लिया था एरिया वेक्टर। लेकिन अभी जब भी हम इनफाइनाइटली शीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ने डीएस को कहाँ पे लिया था, प्लेन सरफेस पे लिया था, ना कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाउ टू चेंज योर थॉट प्रोसेस फॉर गोइंग Yes, टू sir. Yes, sir. द listen carefully, students, okay? An imaginary large thin, students listen carefully. An imaginary large thin non-conducting wire, an imaginary, an infinitely, I can say, infinitely long thin non-conducting wire is parallel to z-axis and it carries a uniform charge density lambda. यानी यहाँ पे मेरा एक वायर है, which is passing all the way from here, okay,
and it has a charge which is distributed throughout its length, we consider, and lambda is given as a charge distribution over its length. ये lambda क्या है students? Linear charge density, and this is a wire I'll consider. Okay, लेकिन ये thin non-conducting wire which is going parallel to the z-axis and it's cutting the sphere, students. So once again, an infinitely long thin non-conducting wire is parallel to the z-axis and carries a uniform line charge density lambda. ये जो वायर है मैंने इसको pierce किया है through a non-conducting spherical conductor. It's a non-conducting sphere जिसका रेडियस मैं r देता हूं तुम्हें. Okay, radius is r, students. Such that the wire subtends an arc. Students, the wire subtends an arc PQ. Subtends an arc PQ at the center. Okay, subtends an arc at the center, forming an angle of 120 degrees. I repeat, an infinitely uncharged wire has linear charge density lambda distributed throughout its length. Such a wire is pierced. It's pierced into a non-conducting sphere parallel to the z-axis. The radius of the sphere is capital R. The wire subtends an arc and forms an angle at the center of 120 degrees, students. मेरा question ये है, students. The flux through the shell is. बहुत ही easy question है. The flux through the shell is. Options are given to you. Root 3 capital R by lambda epsilon 0. Root 3 capital lambda by 2 epsilon 0. Root 2 capital R lambda by epsilon 0. R lambda 2 upon epsilon 0. Students, क्या है question clear हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, try to get it. Flux through the shell. Sir, we have to find flux through the Shell. You put a positive charge. Positive charge is increased. Let us say it's positive charge is increased. Very good. Very good. Choose the advanced question. Common, very good. Deep and Norman has got it, both of them. Yes, what about rest of them? Please, I want maximum students to answer. Aman, Ayush, Harsh, हर्षिता क्या कर रहे हो तुम? तुम हो लेक्चर में? Yes, sir. तो आंसर दो, चलो फास्ट. दीप और नॉर्मन ने आंसर दे दिया है. अमन, पार्थ, प्रिया, ऋषभ, रिया, शैली, सनिका, सिद्धार्थ, तारिक. व्हाट अबाउट यू, तारिक? तारिक and Josh, Yes, sir. आंसर करो. Sanika used to answer earlier. I know what happened to her now.
Okay. Norman, can you answer? कैसे करोगे? Yes, sir. Sir, we know that electric flux formula Q by epsilon naught. Very good. Epsilon for a medium. Yes, sir. Lambda is equal to Q by L. Yes. ये PQ होगा VR L. NPQ होगा PQ. NPQ होगा ना? Yes, sir. What Yes, is sir. NPQ? Sir, 2R sin 60. Students, अगर तुम लेंथ PQ फाइंड आउट करोगे तो ये तुम्हारा आंसर है क्या? देखो ना तुम्हारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होगा? देखो सारे तुम्हारे लैम्ब्डा में दिया ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q अपन आपसे नहीं, सबको मालूम है गॉसेस थ्योरम है। Q की जगह पे क्या लिखोगे? लैम्ब्डा लेंथ PQ अपॉन एप्सिलॉन फॉर मीडियम। लेकिन लेंथ PQ क्या चाहिए मुझे? इन टर्म्स ऑफ रेडियस चाहिए। तो कैसे होगा सर? अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूँ तो 60 है, ये 30 है, तो साइड ऑपोजिट 60 डिग्री इज व्हाट? √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज, है ना? ये पार्ट है ना? लेकिन मुझे टोटल लेंथ चाहिए तो डबल कर दो। तो क्या हुआ लेंथ PQ? √3R। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? व्हाट इज ऑप्शन ए? यहाँ पे K नहीं है स्टूडेंट्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो भी मेरा आंसर सही है। लैम्ब्डा √3R अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखूंगा तो भी सही है। अगर मैं इसका मतलब मैंने की नहीं डाला, उसका मतलब व्हाट डू आई कंसीडर? वैक्यूम। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे लेंथ PQ आएगा। व्हाट इज लेंथ PQ? व्हाट इज लेंथ PQ? तो मैंने क्या किया, ये 120 डिग्री दिया ना, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये 60 हो जाएगा। व्हाट इज साइड ऑपोजिट 60 डिग्री? √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। सो √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये आधा होगा, मुझे PQ चाहिए, डबल चाहिए। इसका डबल करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ क्या होगा? एग्रीड स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. Yes, sir. Clear. दीप तूने ऐसे ही किया था ना? हाँ सर, सेम किया। Okay, fine. Students, next lecture will be continuing further and पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, गॉसेस थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, और फिर हम लास्ट कंसेप्ट का पास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, sir. We'll wind up the session today. Okay? Yes. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Bye bye.